Hello everyone, dear students. Today we are going to do the second part of the chapter Reached for the Top of Maria Sharapova. Now this girl Maria Sharapova, we read about in our first part about Santosh Yadav. Now this girl, a Russian girl Maria Sharapova, reached the summit of women's tennis. Summit means to the height of women's tennis when she was barely 18. Only she was 18 years and she reached to the height of the women's tennis. She got achievement, the success in the field of tennis, in the field of sport. And in first part we read about Santosh Yadav. She reached to the summit of the mountaineering, okay, where she climbed Mount Everest twice. She was the only woman to reach Mount Everest twice. So here we are going to read about this girl Maria Sharapova, about her life, how she reached to the summit of her tennis. Now as you read about her, see if you can draw a comparison between her and Santosh Yadav. Okay, now here is a match the following given here. After completing the chapter, you may try to solve it on your own. Okay. Now, as you read, look for the answer to these questions. It means in this chapter, we are going to read the answer for this question. Why was she sent to the US? I shall ask you this question. Why didn't her mother go with her? What are her hobbies? What does she like? And what motivates her to keep going? Means, what were the things that motivated her to move further? Okay, so let's start with the chapter now. There is something disarming about Maria, something at odds with her ready smile and glamorous attire. Means Maria Sharapova means disarming, something different. Okay, जो सब में यूनिक होता है. She was quite different from others and she was quite friendly with others without suspicion. We could say बिना संदेह की मित्रता जिसको हम कह सकते हैं. At odds with, in contrast to means okay, at which is not matched with any other. ठीक है, तो उसका जो नेचर था, that were quite different. They were not matched to her smile and glamorous attire. Glamorous means very attractive. तो उसका जो अटायर था, ड्रेसिंग सेंस थी, ठीक है, वो उसके नेचर से मैच नहीं खाती थी. जो उसका नेचर था उसके अकॉर्डिंग उसका अटायर नहीं था. मीन शी वॉज क्वाइट fond of wearing attractive clothes. And that something in her lifted her on Monday, 22 August 2005 to the world number 1 position in women's tennis. और यही उसकी यूनिकनेस, उसमें कुछ अलग, we could say something different in her helped her. यही रीज़न है कि 2005 में जब वुमेंस टेनिस हुआ था उसमें उसने नंबर 1 पोजीशन हेल्ड की थी. ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम, यानी बिल्कुल कम समय में ये सब कुछ हुआ. पोइस्ड बियॉन्ड हर ईयर्स. पोइस्ड बियॉन्ड हर ईयर्स मीन्स उसकी एज के अकॉर्डिंग. ठीक है. The Siberian-born teenager took just 4 years as a professional to reach the pinnacle. It means यहाँ पर poised means है calm and patient. ठीक है. Beyond her years, the Siberian teenager took 4 years as a professional to reach the pinnacle. यानी अगर उसकी एज के अकॉर्डिंग देखे जाए तो she was so patient girl, उसी का पेशेंस का नतीजा था that शी रीच बहुत ही कम समय में, ओनली 4 years में वो पिनेकल मीन्स हाई पॉइंट ऑफ सक्सेस. तो सक्सेस यानी सक्सेस अचीव किया उन्होंने लाइफ में बहुत ही कम समय में, जो जनरली स्पोर्ट्स की फील्ड में बहुत मुश्किल होता है. ठीक है. हियर यू कुड सी एट विम्बल्डन इन 2004. हाउएवर द रैपिड असेंट in a fiercely competitive world began 9 years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure. It means the rapid ascent. Ascent here means progress. In a fiercely means very strong. Competitive world. यानी इस
कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, इस कंपटीशन भरे ज़माने में इतनी स्पीड से सक्सेस पाना इजी नहीं था, लेकिन मारिया शारापोवा ने ये कर दिखाया। ठीक है, विद लेवल ऑफ सेक्रीफाइस फ्यू चिल्ड्रन वुड बी प्रिपेयर टू एंड्योर। यानी जो सेक्रीफाइस उन्होंने अपनी लाइफ में किया, वो अगर उसकी जगह कोई शायद दूसरे बच्चे हो तो वो शायद उनके लिए टिके रहना मुश्किल है। एंड्योर मीन्स टू बेयर, बर्दाश्त करना। ठीक है, so that thing she followed in her life, and that is sacrifice, patience, calmness, and endurance to work hard. Little Maria had not yet celebrated her 10th birthday when she was packed off to train in the United States. जब वो 10 साल की भी पूरी कंप्लीट नहीं हुई थी और उनको कहाँ पर यूएस भेजा गया। शी वॉज पैक्ड ऑफ टू ट्रेन इन द यूएस। Packed off means to sent off somewhere. The trip to Florida with her father Yuri launched her on the path to success and stardom. यही वो शुरुआत थी उस रास्ते की। ठीक है, द पाथ टूवर्ड सक्सेस, जो सक्सेस की तरफ था। द ट्रिप टू फ्लोरिडा विद हर फादर यूरी, सक्सेस एंड स्टारडम। ठीक है, स्टारडम यानी एज ए सेलिब्रिटी, बहुत सारी अचीवमेंट मिलना। Now when she moved with her father to Florida, but it also required a heart-wrenching 2-year separation from her mother Yelena. It also required a heart-wrenching 2-year separation. Heart-wrenching means बहुत ही सैड, दुख भरा। ठीक है, तो सबसे दुख भरा मोमेंट उसके लिए ये भी था क्योंकि 2 साल वो अपनी मदर से अलग रही। The reason was that because the latter was compelled to stay back in Siberia because of visa restrictions. Latter here means her mother. ठीक है, was compelled यानी force to stay back in Siberia. वो साइबेरिया में ही रुकी, वो उन दोनों के साथ नहीं जा सकी because of visa restriction, क्योंकि कुछ ऐसे रूल्स या रिस्ट्रिक्शंस थे वीज़ा से रिलेटेड, उनके शायद कंप्लीट नहीं थे, तो इस रीज़न से वो अपने हस्बैंड और अपनी बेटी के साथ नहीं जा पाए। The 9-year-old girl had already learnt an important lesson in life, that tennis excellence would only come at a price. यानी 9 साल की उम्र में ही उन्होंने एक चीज़ सीख ली थी। ठीक है, सबसे बड़ी कि एक तो अपनी मदर के साथ नहीं रह पाई। ठीक है, ये सबसे बड़ा लाइफ का पहला एक सेक्रीफाइस था उनका। वी कुड नॉट लिव विदाउट आवर मदर, इजंट शी लिव्ड, और वो सिर्फ 9 साल की थी उस समय। दैट टेनिस एक्सेलेंट वुड ओनली कम एट अ प्राइस। टेनिस एक्सेलेंस यानी कि अगर आपको टेनिस की फील्ड में, स्पोर्ट्स की फील्ड में जाना है तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। आई यूज टू बी सो लोनली, मारिया रिकॉल्स। तो शी सेज कि मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती थी, वो याद करती है। रिकॉल्स मीन्स शी रिमाइंड्स द डेज। I missed my mother terribly. She missed her mother a lot at that time. My father was working as much as he could to keep my tennis training going, so he couldn't see me either. It means that mother was not there. Okay, she was in Siberia, और her father had to work hard, क्योंकि टेनिस की फील्ड में अपनी बेटी को ट्रेनिंग दिलाना, तो उसके लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत थी। तो उसके जो फादर थे उस समय बहुत हार्ड वर्क करते थे रात दिन, और इस रीज़न से वो एक दूसरे से मिल भी नहीं पाते थे। तो दो शी वॉज, एक तो पहले से मदर नहीं थी उसके साथ, और दूसरी तरफ फादर भी रात दिन मेहनत करने में लगे हुए थे पैसे के लिए। ठीक है, सो ही कुडंट सी मी इधर, तो वो भी उससे नहीं मिल पाते थे। बिकॉज आई वॉज सो यंग आई यूज़ टू गो टू बेड एट 8 PM। आई वॉज सो यंग यानी उस समय यंग थी वो। ठीक है, तो वो 8 बजे ही सोने चली जाती थी। बिकॉज द अदर टेनिस प्यूपिल्स मीन्स जो अदर स्टूडेंट्स थे, ट्रेनर्स थे टेनिस के, वुड कम इन एट 11 PM एंड वेक मी अप एंड ऑर्डर मी टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट। क्योंकि रोज़ उसके साथ जो और भी टेनिस के जो ट्रेनर्स थे वो रोज़ आकर रात की 11 बजे उसको उठाते थे। ठीक है, और उससे अपने कमरे की सारी साफ़ सफाई सारा काम उससे करवाते थे मारिया से। इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी
आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ। यानी ऐसा ना, जब वो उसके साथ इस तरह से व्यवहार होता था, इस तरह से ट्रीटमेंट होती थी उसके साथ, जो ट्रीट वो बच्चे उसके साथ करते थे, तो इससे वो डिप्रेस नहीं होती थी। अगर हमारे साथ कोई ऐसा करे तो हम बहुत डिप्रेस हो जाते हैं कि ये लोग मेरे साथ कितना गलत कर रहे हैं, सारा काम मुझसे करवाते हैं, मुझे सोने नहीं देते हैं। तो इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, उसने उस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, और उस इंसिडेंट से वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, क्वाइटली डिटरमाइंड, यानी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, एंड मेंटली टफ, इससे वो और मेंटली स्ट्रॉन्ग हो गई और अपने आप को और स्ट्रॉन्ग कर लिया कि लाइफ में ऐसे लोगों को मुझे फेस करना होगा, ना कि इनसे मुंह छुपा के हमको भाग जाना है कि ये लोग मुझसे ऐसा करते, मैं यहाँ से छोड़ के चला जाऊँ। नॉट दैट थिंग। आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू वॉट आई वॉन्टेड। तो यही रीज़न था, उसने इतनी सी कम उम्र में अपनी खुद की केयर करनी सीख ली थी। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू वॉट आई वॉन्टेड। और कभी भी कोई भी चीज़ को क्विट करना यानी छोड़ देना, तो ये चीज़ उसने कभी भी नहीं सोची। अगर लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको छोड़ना नहीं है हमें। वी शुड एक्सेप्ट दैट प्रॉब्लम, ओके, बिकॉज आई न्यू वॉट आई वॉन्टेड, क्योंकि उसको पता है कि उसको क्या चाहिए। वैन यू कम फ्रॉम नथिंग एंड यू हैव नथिंग, then it makes you very hungry and determined. It means when you come from nothing, जब आप उस जगह से आते हैं जहाँ आपके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, और पहले से भी कुछ भी नहीं था और अभी भी कुछ भी नहीं है, तो आपकी जो तड़प है उस चीज़ को पाने की, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसकी किसके लिए तड़प थी, किसके लिए भूख थी? टू बिकम अ बिग टेनिस प्लेयर, नंबर 1 टेनिस प्लेयर। I would have put up with much more humiliation and insults than to steadfastly pursue my dream. Humiliation means actually insult करना, ठीक है, disrespects. Then to that steadfastly pursue my dream. Steadfastly means with strong determination and follow. So what she did, I would have put up with much more humiliation, insults than that to steadfastly pursue my dream. यानी इस तरह की बहुत सारी इंसल्ट्स, ह्यूमिलिएशन उसको और भी फेस करनी होगी, तो शी विल फेस दैट प्रॉब्लम, ठीक है, बट स्टिल शी विल फॉलो द पाथ, वो रास्ता अपना नहीं छोड़ेगी। शी विल कंटिन्यू विद हर ट्रेनिंग, विद हर डिटर्मिनेशन टू अचीव वॉट शी वॉन्ट। दैट टफनेस रन्स थ्रू मारिया इवन टुडे। और यही टफनेस मीन्स यही स्ट्रॉन्गनेस, यही मजबूती आज भी उसमें है। इट वॉज द की टू हर बैगिंग the women's singles crown at Wimbledon in 2004 and to her meteoric rise to the world number 1 spot the following year. और यही रीज़न था, और यही दिस वॉज द की टू हर सक्सेस। बैगिंग मीन्स विनिंग द वुमेन सिंगल क्राउन और इन विम्बल्डन 2004। और यही उनकी डिटर्मिनेशन, हर सब कुछ बर्दाश्त करने की, पेशेंस रखना, और ये इसी रीज़न से वो वुमेन सिंगल में 2004 में जीत पाई एंड रीच टू हर मेट्योरिक rise. So this was the reason she reached very high to the position of world number 1 that year. While her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched the heart of tennis fans, for the youngster herself there appears to be no room for sentiment. Now here she wants to say, while her journey from the frozen plains of Siberia टू द समिट ऑफ वुमेंस टेनिस, तो इनका जो सफ़र था उस साइबेरिया की फ्रोज़न प्लेन्स, जो जिस जगह से वो आई थी, ठीक है, उस जगह से लेकर समिट ऑफ वुमेंस टेनिस टू द हाइट ऑफ वुमेंस टेनिस शी रीच्ड, ये एक सबक था। अदर एंड दिस थिंग मेड
लॉट ऑफ फैन फॉर हर, उसके बहुत सारे फ़ैन हुए. फॉर द यंगस्टर हर सेल्फ देर अपियर्स टू बी नो रूम फॉर सेंटिमेंट. सेंटिमेंट मीन्स इमोशंस. उसकी लाइफ में इमोशंस नहीं थे, क्योंकि इमोशंस जो होते हैं वो इंसान को पिछड़ा देते हैं. ठीक है, हम अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए कोई कुछ बोल दे तो हम इमोशन से भर जाते हैं. ठीक है, रोना, मतलब सो दिस थिंग्स वर नॉट देयर इन हर लाइफ. और यही रीज़न था कि वो अपने एम्बिशन को पा सके. द स्ट्रेट लुक्स एंड द आंसर शी गिव्स when asked about her ambition make it imply clear that she considers the sacrifice were worth it. The straight looks and the answers. The straight looks मैंने सीधे सीधे हर सवाल का जवाब देना. ठीक है, और उनकी जो एम्बिशंस थे, डिज़ायर्स थे, तो उसके बारे में जब इनसे पूछा गया और उन्होंने जो क्लियर आंसर दिए, तो इससे ये पता चल गया कि उन्होंने जो सेक्रीफाइस दिए अपने लाइफ में वो वर्थ इट, यानी वैल्यूएबल थे. आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव. आई वर्कड हार्ड एट वॉट आई डू. इट्स माई जॉब. यानी कुछ भी सोचा है तो उसके लिए पूरा हार्ड वर्क करती है. नॉट ओनली वेदर इट टेनिस, अगर उनकी कोई भी हॉबी है तो उसके लिए अगर वो कुछ करना है, ठान लिया, तो वो उसके लिए पूरा कंप्लीट हार्ड वर्क करती है, छोड़ नहीं देती है. दिस इज़ हर मंत्रा फॉर सक्सेस. और यही उनकी सक्सेस का असली मंत्र है. दो मारिया शारापोवा स्पीक्स विद अ प्रोनाउंस अमेरिकन एसेंट, शी प्राउडली परेड्स हर रशियन नेशनलिटी. इट मीन्स वो अमेरिकन लैंग्वेज बहुत ही एसेंट फ्लुएंटली बोलती है. ठीक है, लेकिन शी फील्स प्राउड ऑफ बीइंग अ रशियन. लेकिन उनको अपने रशियन होने पे ज़्यादा प्राउड है. शी सेज दैट आई एम रशियन. Though the US is a big part of my life, though US is big part of my life, क्योंकि उन्होंने यूनाइटेड स्टेट में ही सारी ट्रेनिंग ली, सब कुछ विंबलडन वगैरह, तो वो उनके लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन वो एक रशियन है. तो आई हैव रशियन सिटीजनशिप, माई ब्लड इज़ टोटली रशियन. आई विल प्ले ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ़ दे वांट मी. तो अगर रशिया के लिए ओलंपिक्स खेलने हो तो मैं डेफिनेटली खेलूँगी एंड आई विल विन. Like any number of teenage sensations, Maria Sharapova lists fashion, singing, and dancing as her hobbies. So her hobbies are singing, dancing, and fashion. She loves reading the novels of Arthur Conan Doyle. You would have heard the name of this person who wrote many detective stories. So she loves the reading of novel of this person, and her fondness for sophisticated means sophisticated here means highly modernized. ठीक है, evening gowns appears at odds with her love of pancakes with chocolate spread and fizzy orange drinks. Means these are the things which she likes the most. Means modern evening gown she loves a lot, और फिर pancakes with chocolate and fizzy orange drinks. Maria Sharapova cannot be pigeonholed or categorized. Pigeonholed means we could say कि we could not categorize her. हम उनको किसी भी कैटेगरी में नहीं रख सकते. That she is in the category of tennis, in the sports and all that. Her talent, unwavering desire. Okay, her talent, unwavering desire to succeed and readiness to sacrifice have lifted her to the top of the world. So not only these things, लेकिन उनका जो टैलेंट है, the way she sacrificed her mother's love to live with her, और जो उन्होंने दूसरे जो टेनिस ट्रेनिस थे उनके साथ, जो उन्होंने उनके साथ व्यवहार किया, ट्रीटमेंट किया, और लाइफ में जो भी हार्ड वर्क था वो सारा उन्होंने फेस किया. तो दीज आर द थिंग्स विच हैड लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. और रेडीनेस यानी हर एक चैलेंज के लिए तैयार रहना, और यही रीज़न है, उनका सीक्रेट है उनके सक्सेस का. फॉर वर्ल्ड वुड grudge her, few would grudge her the riches she is now reaping.
ग्रज मीन्स एक्चुअली टू बी एनवियस, किसी से ईर्ष्या करना, जेलिसी, ओके, एनवी. और रिचेस मीन्स शी हैड लॉट ऑफ मनी विच शी इज़ नाउ रीपिंग. रीपिंग मीन्स विच शी इज़ गेटिंग नाउ, यानी अभी जो उन्होंने अपनी लाइफ में जो सक्सेस मिला है और उस सक्सेस के साथ साथ उन्होंने काफ़ी पैसा भी पाया. दिस इज़ वॉट शी हैज़ टू से अबाउट हर मॉनेटरी गेन्स. मॉनेटरी गेन्स मीन्स वी कुड से इकोनॉमिकली, ठीक है. Of course, money is a motivation. Tennis is a business and a sport. It means this thing is clear. Once a person starts earning money, it motivates him to earn more and more. So, tennis is a business and a sport. टेनिस को हम एक बिजनेस भी कह सकते हैं और उसके साथ साथ वो एक स्पोर्ट तो है ही. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू बिकम नंबर वन इन द वर्ल्ड. दैट्स द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग. तो ना सिर्फ पैसा कमाना, सबसे मेन चीज़, उसका जो सबसे मेन टारगेट था मारिया का, वो है टू बिकम नंबर वन इन द वर्ल्ड. नॉट ओनली अर्निंग मनी बट टू बिकम नंबर वन इन द वर्ल्ड. और यही चीज़, टू बिकम नंबर वन इन द वर्ल्ड, दैट केप्ट मी गोइंग, जो जिसकी वजह से वो लगातार अपने सपने को पूरा करने में लगी रही. ओके, so here we have completed the second part of our chapter. Thank you.